Okay, students, so right now with me here is Manan, and we are going to start his snap of mathematics. So first of all, Manan, you tell me what is your BTech branch and what is your GATE score and from which institute you have got interview call. Okay, sir. I've done my BTech in mechanical engineering, and my GATE score in 2021 is 742, general category. Okay. I've got a call from research program in computational data science from IISc Bangalore. Okay. So now you tell me, are you comfortable in mathematics? Yes, sir. Okay. So tell me, what is the relationship between eigenvalue and eigenvectors of a matrix? Okay. So the eigenvalues, we can calculate the eigenvalues by characteristic equation. Suppose there is a matrix A, we can calculate the eigenvalues by A minus lambda I. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. Okay. And after that, Wait. Why do we make this A minus lambda determinant equal to 0? sir, this is actually a theorem which is Cayley-Hamilton theorem. So as per this theorem, this is a rule by which we can calculate the eigenvalues. No, Cayley-Hamilton theorem is different. This is not Cayley-Hamilton theorem. So then I will Is not any other reason for this? Sir, I'm not able to. Okay, tell me what is Cayley-Hamilton theorem? Right now, I told that you said that is not correct. So right now, I told A minus lambda I determinant equal to 0. That is Cayley-Hamilton. This is Cayley-Hamilton theorem. So this is Cayley-Hamilton theorem by which we can get the characteristic equation of a matrix. So Cayley-Hamilton theorem gives a characteristic equation. Yes, sir. Okay. Okay, so note down a matrix of size 2 by 2. First row is minus 2, 2. Second row is 28 minus 1. 28. Yeah, 28. Next element minus 1. Again, I am telling you, first row is minus 2, 2. Second row is 28 minus 1. So tell me what are the eigenvalues of this matrix? So the eigenvalues are 6 and minus 9. And minus 9. Okay. Can you tell me number of linearly independent eigenvectors of this matrix? So the linearly independent eigenvectors are 2. 2. So can you explain it geometrically? What is the meaning of this 2? Why we say that there are 2 linearly independent eigenvectors? So actually this linearly independent eigenvector we calculated from the geometric multiplicity. If the geometric multiplicity is actually linearly independent eigenvectors are the sum of the total geometric multiplicity of each eigenvector, each eigenvalue. That is a linearly independent eigenvector. So here we have 6 and minus 9. So both are distinct eigenvalues. So each will have arithmetic multiplicity as 1. So their geometric multiplicity will also be 1. That is a method or formula that you can compute this number. I am asking, explain it geometrically. What is the meaning of this geometrically actually? Why do we say that there are total 2 linearly independent eigenvectors? Calculation. Sir, every individual eigenvalue will have corresponding eigenvector. So there are 2 distinct eigenvalues here. So each will have a corresponding eigenvector. So that means we can say that the matrix has 2 linearly independent eigenvectors. Okay. Suppose I am assuming, okay, it is not sure that it is the eigenvector, that 4 minus 1 is an eigenvector of this matrix. Suppose 4 minus 1 eigenvector है, मान लिया, पता नहीं है कि नहीं, हमने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे मान लेते हैं. अब
इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू, कैन यू टेल मी एनी अदर आइगन वेक्टर? Yes, sir. We can. There are infinite eigenvectors corresponding to particular eigenvalue. Okay. So, for example, 4 minus 1 is an eigenvector. So 8 and minus 2 will also be an eigenvector because it is a multiple of 2. So infinite corresponding to one eigenvalue, Yes, sir. infinite corresponding to another eigenvalue. Yes, sir. So there are various eigenvectors. Yes, sir. Then why do we say two linearly independent eigenvectors? Sir, the word linearly independent means that it is not independent to each other. But as for a particular eigenvalue, we have infinite eigenvectors, but they are linearly dependent. So we are asking for linearly independent eigenvectors. So that this will be 2 only in this case. Okay. Okay, now you tell me what is random variable? So random variable, it's a function which gives an image of every sample point in a sample space. Image of every sample point. Yes, sir. And how is this image represented? So this means, sir, for example, वो image क्या होगी, कैसे लिखेंगे उसको? Sir, it's a function which we can write domains and we can write range. So every particular domain will corresponding to an image. That will be the range of that function. That will be probability actually. Probability of every random variable. This will be the image of the random variable. Okay, random variable is a function. You said random variable Yes, is a function. In function we have domain and range. Yes, sir. So what is the domain of that function? Sir, domain in this case is the value of x, the probability density random variable x, which can be from 0, 1, 2 if it is a discrete random variable. If it is a continuous random variable, it will be a range 0 to 1 or 0 to 2. And the range will be the probability, corresponding probability of that random variable. Okay, याद रखना अपने आंसर को, ठीक है? Yes, sir. जो तुमने बताया। अच्छा, ये बताइए कि डिफरेंट काइंड्स के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है? आपने सुना होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट these distributions represent? So this distribution actually gives these are functions which we define for a random variable, and we get the probability of every point on the random variable. That's all. So अलग-अलग distributions का क्या meaning है? So there is so what I believe is that every distribution has a different function, so that the expression of the function is different. So just like there is a normal distribution, so the curve is a bell-shaped curve. Okay, draw that curve, draw normal curve. So this is a bell-shaped curve where mean is there. ये इसका मैक्सिमम कहाँ पे है? सर वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, वो मैक्सिमम ये है. तो अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या ये नॉर्मल कर्व रहेगा? वो बनाने में गलती होगी सर. तो बनाओ सही तरीके से, प्रॉपर दिखना चाहिए नॉर्मल कर्व. Very good. So what is this vertical line? Is this y-axis? Sir, this vertical line represents the distribution, the frequency of the distribution. Like suppose we have a set where we have marks of a students in a class. So this vertical line represents the marks of the students, and the maximum peak is for the mean marks of the students.
So mean will be the frequency of mean will be maximum. So there the curve is at the peak at this point. So it represents suppose mass. Okay, show me the curve again. So tell me about concavity. How is the concavity of this curve? Sorry, sir, I'm not able to recall that. Concavity not able to recall. Okay. अच्छा, Poisson distribution का कोई example दो. In what experiment we say that this is example of Poisson distribution? Sir, Poisson distribution, first of all, I would like to describe it. It is used when the probability of an outcome is favorable outcome is very less, and the number of sample space is very more. So, like if, for example, there are 10,000 bulbs, and the probability that the bulb is defective is very less, suppose 0.1%. So, in that case, we use the Poisson distribution. Okay. अच्छा, आप सिटी में रहते हैं कि किसी विलेज में रहते हैं, रूरल एरिया में? सर सिटी में रहते हैं. अच्छा, तो आपका एक मतलब मोहल्ला है आपका, ठीक है ना, एक लोकेलिटी है जहाँ पे आप रहते हैं, उसको कन्फाइन कर लेते हैं हम, एक बाउंड्री बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं सपोज, ठीक है. अब वहां पे रैंडम वेरिएबल जो है हमारा, रैंडम वेरिएबल वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स, ठीक है, पर डे, कितने कोविड पेशेंट आते हैं पर डे. तो ऑन एन एवरेज 8 पेशेंट्स पर डे आते हैं उस एरिया में. 8 पेशेंट्स, ठीक है, 8 पेशेंट्स पर डे ये आते हैं. अब अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे किसी पार्टिकुलर डे में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आएगा, तो क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें हम वहां पे? सर Poisson's distribution. Poisson's distribution, सर. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपने निकाला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? सर क्योंकि जो number of COVID patients per day, there are 8 per day, so this is a very less amount. So probability of COVID patient per day will be very less. 8, ये 8 जो बहुत कम पेशेंट है, 8 नंबर जो अगर आता है तो कहीं पे. सर अगर एक सिटी में हम एक कन्फाइन करेंगे एक एरिया, तो उसमें पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होगी ना सर, उसके करस्पॉन्डिंग 8 इज कंपैरेटिवली लेस. अच्छा, अगर मैं 50 बोलता हूँ तब? सर देन इट विल चेंज. तब ये पॉइजन में नहीं आएगा. Sir, 50 is the total population or the number of cases per day? Per day 50 cases, 50 patients per day. Sir, it's a relative term. मतलब अगर total population इसके comparison में ज़्यादा है तो population की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I am not talking about what population is there. बता ही नहीं रहा मैं population कम है कि ज़्यादा है. मैं only number of patients on an average per day बता रहा हूँ. No idea. No idea. Okay. ये बताइए कि न्यूटन रेफसन मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? Newton Raphson method, sir, we have used the Newton Raphson method to calculate the roots of an equation. Calculate the roots of it. रूट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, क्या क्या उसका प्रिंसिपल है न्यूटन रेफसन मेथड का? हाउ इट वर्क्स? सर न्यूटन रेफसन में हम एक फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल सॉल्यूशन लेते हैं, एक स्टार्टिंग सॉल्यूशन, जो हम उसके बाद उसका वो उस कर्व की वैल्यू जो ग्राफ पे आती है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो वो जब
टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पे कट करता है तो वो वैल्यू हमारा सेकंड एस्टिमेट बनता है। इस केस में सर क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम उसको नेक्स्ट इटरेशन करते जाएंगे तो वो हमारे रूट के करस्पॉन्डिंग क्लोज आता जाएगा। ओके, अच्छा ये बताइए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, नोट करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लीज रिपीट। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू 0। सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम नोट करते हैं, सो क्या ऑर्डर है इसका? सर सेकंड ऑर्डर है सर। ओके, लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर है? आई एम नॉट श्योर सर, आई थिंक इट इज नॉन लीनियर। अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या? यस सर। ओके, बताओ। सर c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x, where m1 is equal to -1 plus root 5 by 2 and m2 is -1 minus root 5 by 2. ओके, m1x plus c2 e to the power m2, राइट? Yes, sir. एक फंक्शन है fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर 1 upon x square plus 1 भी डिनोमिनेटर में ही है। हाँ, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका ग्राफ लोड करो। वन पे कॉर्नर बना रहे हो आप, राइट? ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने रिग्रेशन के बारे में सुना है कभी? नो, कोई बात नहीं। वेक्टर स्पेस के बारे में यस सर। बताइए, व्हाट इज वेक्टर स्पेस? Sir, vector space is a set of elements where sir, vector space is a set of elements where it is closed for in addition and it is closed in scalar multiplication ओके, operations. एग्जांपल? So example, vector space is R, real number, R square, R cube. ये वेक्टर स्पेस होते हैं। Yes, sir. सब स्पेस? So subspace इसका एक subset होता है सर। Subspace is a subset of vector space V, let us say V, which is also closed in addition and scalar multiplication. सपोज हमारे पास R क्यूब है, दिस इज वेक्टर स्पेस, सो टेल मी एनी सब स्पेस ऑफ दिस R क्यूब। Sir, any three coplanar vectors will be subspace of this R cube. एनी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स? Set of three coplanar vectors. अच्छा, अगर मैं 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का सेट ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे एग्जांपल Sir, like 1 1 1 sir, 2 2 2 3 3 3 3. 4 3, ये कोप्लेनर है क्या? ये 3 3 3 ले लेते हैं, चलो 3 वेक्टर का सेट बना लिया, तो क्या ये सब स्पेस हो जाएगा? सर सबस्पेस उसका सबसेट होना चाहिए, तो ये सबसेट ही है सर उसका। अच्छा, अगर हम इसमें 3 3 3 और 2 2 2 को ऐड कर दें तो क्या आएगा? 2 2 2 और 3 3 3 को ऐड कर दिया हमने सपोज, तो 5 5 5 5 5 5 आएगा सर। तो क्या है वो सेट में? हाँ सर, वो रहेगा इसमें। नहीं, तो आप ये 3 एलिमेंट बोल रहे हो कि जनरल फॉर्म बोल रहे हो, ये बताओ ना क्लियरली। नहीं सर, जनरली मतलब कोई भी तीन हो सकते हैं।
तो जनरल फॉर्म बोलो ना, ए बोलो, ऐसे पार्टिकुलर एलिमेंट मत बताओ ना फिर। यू कैन से दैट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए। तो सिर्फ ए नहीं, मतलब कोई भी तीन मतलब हो सकते हैं इसमें, ए बी सी, सेट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी। ओके, चलो मनन, आपका इंटरव्यू ओवर है। नाउ लेट मी गिव यू द फीडबैक। So Manan, first of all, रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये मैंने पूछा, आपने बताया a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल टू 0 समथिंग। देन मैंने पूछा आपसे व्हाई डू वी टेक a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। आपने कहा कैले हैमिल्टन थ्योरम की वजह से नहीं। देखो a माइनस लैम्डा i के डिटरमिनेंट को 0 क्यों किया जाता है? बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है, a x इक्वल टू लैम्डा x, ये रिलेशनशिप होती है। x इज आइगन वेक्टर, लैम्डा इज करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। जो भी x इसको सेटिस्फाई करेगा वो आइगन वेक्टर होता है का, और बहुत सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लेफ्ट में लेके चले जाएं अगर, तो ये बन जाएगा a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स और इक्वल टू 0। इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये a माइनस लैम्डा i जो है ये n/n साइज का एक मैट्रिक्स है एक्चुअली। ठीक, और ये जो x है क्या है, ये n/1 साइज का एक कॉलम मैट्रिक्स है, और 0 क्या है, ये भी n/1 का है। अब अगर इसके आइगन वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनको हम अननोन मान लें x1 x2 xn, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दें 0 के, सो वी विल गेट ए सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ n लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब होमोजेनियस सिस्टम है जिसमें n इक्वेशंस n अननोन्स हैं, और उसमें x जो है बहुत सारे होंगे बिकॉज आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइगन वेक्टर इनफाइनाइट होते हैं, सो इस सिस्टम का कितने सॉल्यूशन होंगे? दिस सिस्टम मस्ट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर नॉन 0 करेंगे तब तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओरिजिन ही आएगा केवल, जबकि आइगन वेक्टर तो बहुत सारे होते हैं। तो to get infinite number of eigenvectors we need to make this determinant equal to 0. क्लियर है पॉइंट? देन आइगन वेक्टर का कंप्यूटेशन आपने कर दिया, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट का भी आपने सही आंसर दे दिया, दैट इज ओके। रैंडम वेरिएबल में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा पढ़ा हुआ है आपने बट नॉट क्लियरली। देखो रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन, आपने बोला फंक्शन ओके, बस उसके आगे की चीजें भूल गए आप। Random variable is a function or rule which assigns a unique real number to every sample point of a sample space. किसी सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट होते हैं ना, उनको यूनिक रियल नंबर असाइन करता है ये। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, उनका सेट। जो सैंपल स्पेस है ना वो हमारा डोमेन हुआ, और जो रैंडम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, ये रैंडम वेरिएबल उन सैंपल पॉइंट को जो वैल्यू असाइन करेगा, वो वैल्यूज का जो सेट होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। और कोडोमेन क्या होगा इसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो बाद में पिक्चर में आएगी, पहले रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी उसके बाद आती है पिक्चर में। तो इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो एक बार। देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूछा आपसे, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखो वही कंफ्यूजन है बच्चों को कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक अप्रोक्सीमेशन होता है। जब हम बाइनोमियल पढ़ते हैं वहां पे कंडीशन आती है कि जब n बहुत लार्ज होता है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बहुत स्मॉल होती है, तो जो बाइनोमियल का आंसर है वो पॉइजन से मैच कर जाता है। अब बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, वो पॉइजन समझ जाते हैं इसको, पॉइजन थोड़ी है ये। इस केस में बाइनोमियल का आंसर पॉइजन जैसा आता है, लगभग बराबर आता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है।
ठीक है। तो पॉइजन में क्या होता है, पॉइजन कब यूज करते हैं, जब किसी फाइनाइट एरिया में, फाइनाइट रीजन में, फाइनाइट टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ काउंट ऑफ इवेंट्स जो है वो रैंडम होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे पर डे में स्नैप्स लेता हूं, अब लेकिन जो नंबर ऑफ स्नैप्स है वो फिक्स नहीं किया हुआ है मैंने, किसी दिन मैं 2 स्नैप्स ले लेता हूं और किसी दिन मैं 10 स्नैप भी निकाल देता हूं, किसी दिन मैं एक ही स्नैप लेता हूं, किसी दिन एक भी नहीं लेता। तो नंबर ऑफ स्नैप्स पर डे जो है ना, मैं वो रैंडमली चलता है, मैं किसी फिक्स शेड्यूल को फॉलो नहीं करता हूं। तो ये क्या, मैं किसको फॉलो कर रहा हूं, अब जो रैंडम वेरिएबल है मान लिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कितने स्नैप लूंगा पर डे, वो रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 आ सकती है, कोई भी स्नैप नहीं लूं मैं एक दिन में, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। तो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू एज्यूम करेगा वो रैंडमली कर रहा है, किसी दिन कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज मुझे सपोज अपने सीनियर्स को या अपने कलीग्स को ये दिखाना होता है कि ऑन एन एवरेज भाई मैं पर डे 4 स्नैप ले लेता हूं। तो यहां पे जो ऑन एन एवरेज पर डे वो मीन हो गया, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब फ्रीडम है कि मैं किसी दिन ज्यादा ले लूं कम ले लूं, बट ऑन एन एवरेज तो मुझे काम करना पड़ेगा ना कुछ। तो मीन जो है वो नोन होता है इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था कि पर डे 8 पेशेंट्स आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज बोला ना, बट नंबर ऑफ पेशेंट जो आएंगे वो तो रैंडमली आएंगे ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो इसलिए कर रहा है वो। 8 छोटा नंबर है इसलिए थोड़ी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो। क्लियर है पॉइंट? ओके। देन ये जो डिफरेंशियल न्यूटन रेफसन आपने बता दिया, ओके गुड, वो ठीक है आपका आंसर। और इसमें नॉर्मल कर्व जो ड्रॉ किया था उसमें कनकेविटी आपने नहीं बताई। तो देखो नॉर्मल कर्व जब भी ड्रॉ करो तो कनकेविटी का ध्यान रखो, ठीक है, कर्व को ध्यान से पढ़ो। ये नॉर्मल कर्व मैंने बनाया है, इसमें ये मैक्सिमा कहां पे आ रहा है, मीन पे। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला दोनों तरफ होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं दोनों। यहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, इनके बीच में कनकेविटी डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे आगे कनकेव अपवर्ड हो जाता है ये। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है दोनों साइड में, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन आपने किया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी इनकरेक्ट आपने सॉल्यूशन किया। ये आपने होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें आपने यूज तो कर लिया सब्स्टिट्यूशन, x इंटू डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी मान के किया होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x में लिख दिया। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो z में लिखा जाएगा, आपने वेरिएबल चेंज कर लिया है कि नहीं कर लिया? अच्छा हाँ, वो चेंज नहीं किया वेरिएबल। c1 e की पावर m1z प्लस c2 e की पावर m2z और m1 m2 जो आपने बताए वो। अब c1 e की पावर z की पावर m1 कर दो, और e की पावर z को क्या लिखते हैं, x x इक्वल टू e की पावर z लेते हैं ना, तो x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m1 m2 करेक्ट है, वो भी करेक्ट। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ ड्रॉ किया आपने, तो उसमें भी मिस्टेक आपने की ग्राफ में, कि आपने हमेशा देखो जब आप इंजीनियर हो तो आपने कैलकुलस में कनकेविटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीजें पढ़ते हो ना, तो ग्राफ बनाने के टाइम में इनका यूज किया करो ना। ऐसे नहीं कि बस रफली आइडिया लगाया और कर दिया, ऐसे ग्राफ बनाना है, ऐसे जो मैंने अभी बनाया है ये। इसमें तुम्हें क्या देखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर रहेगा, और x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या आएगा, 0। इधर से भी माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। बट अच्छा 0 पे 1 आ गया इसका, ये भी देख लिया हमने। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वो निकालो, f डैश x निकालो, उसको देखो f डैश x को, वो ये आएगा -2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कहां पे निगेटिव कहां पे पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव होगा
तो ये नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और जब x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन उसमें ऐसे नहीं कि वो ऐसे ड्रॉ कर दिया तुमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे नहीं करना, ये कनकेविटी तो ध्यान दो। तो डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, उससे हमें पता चलेगा, डबल डेरिवेटिव निकाल के मैंने देखा कि x माइनस 1/√3 और x प्लस 1/√3 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे की क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो ये 1/√3 माइनस 1/√3 पे अपनी कनकेविटी चेंज करेगा। तो वो ग्राफ में भी ध्यान देना, इधर कनकेव अप, यहाँ पे डाउन रहेगा बीच में, और फिर अप होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।